Now we do concept of GST. So goods and service tax is a tax on supply of goods or services or both, except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption, and it is clearly written in the constitution. So unless the constitution is amended, alcoholic liquor for human consumption cannot come under the purview of GST. Now GST is a tax on both goods and services, and this tax was applicable from 1st July 2017, and 99% of the goods which are liable to tax and all services are covered under GST unless specifically exempted under the GST law. Now we discuss the silent features of GST. The GST is applicable to whole of India including Jammu and Kashmir, and this is a destination based tax. Destination based means where it is consumed. To understand destination based tax, we have to understand the place of supply of goods and services. तो इसको थोड़ा बता देता हूँ. Now some of the states are manufacturing states in which goods are manufactured. So when goods are transferred from manufacturing states to other states, the first GST is levied on the selling price of manufacturer, and thereafter as addition is made in the value of goods and service, additional GST is applicable. This we discussed in the VAT concept, value added tax concept. GST is based on value added tax concept. Then there is dual GST under our law. Dual GST means both central government and state government are getting their equal share under GST. तो GST का भी हम आगे और डिटेल में समझेंगे किस तरह से GST एप्लीकेबल होता है. Then fourth feature is IGST on inter-state supplies. तो first we have to understand what is inter-state supply. इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी सिंपल टर्म्स में समझिए. If supplier is in one state and buyer is in another state, then this is inter-state supply. और inter-state supply पे government levies IGST. IGST means integrated goods and service tax. Now basically there are four major GST rates. One is 5%, second is 12%, third is 18% and fourth is 28%. और जब एक सेल होती है विद इन द सेम स्टेट, व्हेन सप्लायर एंड बायर आर इन द सेम स्टेट, तो उस केस में जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है गुड्स के ऊपर, सपोज इट इज 5%, तो उसका हाफ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और हाफ जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, इवन इफ द सेल इज इन विद इन द स्टेट. तो हाफ को हम कहते हैं CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हाफ को हम कहते हैं STGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और इन केस सेल इज हैपेंड इन अ यूनियन टेरिटरी लाइक इन दिल्ली, तो उस केस में half is CGST and half is UTGST. I think this is clear to you. Yes? Yes, sir.
Okay. Then in earlier class we also discussed the different laws made for GST. So the most important law is CGST Act, और उसके बाद हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया ST-GST एक्ट। तो जितनी स्टेट्स हैं हमारी 29 स्टेट्स हैं, तो 29 SGST एक्ट बनाए गए। इसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज थी, यूनियन टेरिटरीज में जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, इनकी अपनी लेजिस्लेटिव भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इनके केस में SGST एप्लीकेबल होता है। और जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, so in these union territories UT-GST Act is applicable, which is made by the central government. Later on, Jammu Kashmir was divided into 2 union territories, so 28 states remaining. Now next part is we have to understand that which tax will be applicable, whether IGST और CGST। और जहाँ पर CGST एप्लीकेबल होगा वहाँ पर उसके साथ में उतने ही अमाउंट का SGST भी एप्लीकेबल होगा या फिर UT-GST भी एप्लीकेबल होगा। और अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है गुड्स और सर्विस की, तो उस केस में सिर्फ IGST एक्ट पूरे रेट से एप्लीकेबल होगा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड देयर आर 4 टाइप ऑफ टैक्सेस। नंबर 1 IGST जो पूरे रेट से लगता है 5%, 12%, 18% या 28%, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ गुड्स। अब कौन से गुड्स पर कौन सा टैक्स रेट लगता है, ये अगर आपको पता करना है तो एक ऐप आती है GST रेट फाइंडर। आप GST रेट फाइंडर ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें रेट वाइज सारे गुड्स और सर्विसेज गिवन है, किन गुड्स पर और किन सर्विसेज पर किस रेट से टैक्स एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा GST की जो साइट है वो भी आप नोट कर लो, gst.gov.in, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन बेस्ड टैक्स है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन, आपका टैक्स पेमेंट, आपके रिटर्न्स फाइलिंग, आपके नोटिसेस, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। इसमें आपका अपना एक लॉगिन आईडी होता है, अपना GST नंबर होता है, उसके बेसिस पर आप लॉगिन कर अपनी डिटेल्स वगैरह भर सकते हैं। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट मानी जाती है, कौन सी इंट्रा स्टेट मानी जाती है। इंट्रा स्टेट मीन्स लोकल और विद इन द स्टेट। इसमें एग्जांपल्स गिवन है, उनको देख लेते हैं। मिस्टर शिव ऑफ दिल्ली सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर विनोद ऑफ दिल्ली। तो इसमें दोनों सप्लायर और बायर दिल्ली के हैं। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट? सर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट हुई। तो इस पे कौन से 2 टैक्स लगेंगे? अगर 18% का टैक्स रेट मानते हैं तो आधा CGST होगा 9% और आधा SGST होगा 9%। आप भी आइटम्स परचेज करते होगे, आपके पास इनवॉइसेस होंगे, आप उनको देखो या ध्यान करो उनको, उसमें भी आपको CGST और SGST ही लगा होगा। जो आप दूसरी स्टेट से परचेज करते हैं
और अपना दूसरी स्टेट का बायर होता है तब उसके ऊपर IGST लगता है. Second is Raman of Kashmir provided services to Sham of Pune. तो इस केस में सप्लायर और बायर बोथ आर इन डिफरेंट स्टेट्स और वन इन यूनियन टेरिटरी एंड सेकंड इन स्टेट. तो इसके ऊपर लगेगा, इसको ट्रांजेक्शन को मानेंगे इंटर स्टेट और इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा IGST. देन थर्ड इज जानकी ऑफ गोवा सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर क्रूज ऑफ गोवा. So both are in Goa. So this is local और गोवा इज अ स्टेट, तो इस पर लगेगा CGST और SGST. Then Pankaj supplied goods from his place of business in Chandigarh to Surinder of Dehradun, Uttarakhand. So Uttarakhand is separate state, Chandigarh is union territory. तो ये दोनों डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी हुई तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा इंटर स्टेट, मतलब IGST एप्लीकेबल होगा. एंड लास्ट इज मिस्टर काजोल सोल्ड गुड्स टू रानी, दे बोथ लिव इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. सो अगेन दिस इज लोकल सेल और इंट्रा स्टेट. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू.